Hello students. So today we are going to discuss the alternate way of the complement system. In the previous video we have discussed about the complement system, the basics of the complement system and the classical way of the complement system. So before we proceed to alternate pathway of the complement system, we should recapitulate the last lecture, that is the complement. So in short, complement system, it is a system which complement the antigen antibody reactions. It is the important part of the innate immunity, and it consists of about 20 proteins which have a cascade like reactions, the reactions in the flow in which one enzyme or one protein activate the next and split the next protein into two components. So here C1 to C9 proteins, they exist as we studied in the classical pathway. So the first one, it catalyzes the splitting of the second one. These enzymes, they are proenzymes, means they are inactive enzymes, and they become active only after their splitting. So all the 9 proteins, they split into two parts, that is part A and part B. Part A is smaller and it is released, while part B, it form the cascade. It form the component of the cascade. So all the proteins, they have two parts, A and B, where A, it is smaller and released, B, it is larger and it form the part of the cascade. But exception is C2, where C2A is larger and form the part of the cascade. We also studied that the complement pathway has three types of pathways: classical, alternative and lectin. So yesterday we have studied the classical pathway. Today we will study the alternative pathway. So before we start the cascade or the flow of reactions, so some basic idea about the alternate pathway. So first of all, alternate pathway, unlike the classical pathway which was dependent upon antigen antibody complex, it does not require antigen antibody complex. So first is, it does not require the antigen antibody complex, but instead of antigen antibody complex, some activators or initiator, they are required. All the components from C1 to C9 are present except C1, C4, C2. If you remember, in the classical pathway, ठीक है, we have a sequence. ये आपको learn करनी पड़ेगी. C1, C4, C2, C3, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, C3 के आगे सारे कॉन्टिन्यूशन में है, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9. जबकि C1, C4, C2 एंड C3. ठीक है, और एंड ऑल द पार्ट्स, जैसे C4 है, C4A, C4B, C2A, C2B, C3A, C3B, C5A, C5B. तो सारी A B पार्ट में टूट जाते हैं. A पार्ट जो होते हैं मोस्टली दे आर रिलीज्ड एंड दे एक्ट एज एनाफाइलोटॉक्सिन्स, जबकि जो B पार्ट होते हैं वो कैस्केड फॉर्म करते हैं, एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो फाइनली मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये आप लर्न कर लेंगे. 1 to 9, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमने पढ़ी थी क्लासिकल पाथवे में. नाउ इन द alternate pathway, all the C1 to C9 proteins, they are present except C1, C4, C2. They will not participate. ठीक है, central path is C3. Always remember, कोई भी path हो, central path जो होता है वो that is C3. ठीक है, और C1, C4, C2 की जगह यहाँ पे कुछ नए components होते हैं which are factor B, factor D and proper D. ठीक है, so factor B, factor D, proper D, they were not present in the classical pathway. The alternate pathway, it was given by the scientist Pelmer in 1954, and he called this as Properdin system. Initiators or activators, as I told you before also, that antigen antibody complex is not required. Instead of that, some initiator or activators are required. These include bacterial endotoxins, जो toxins bacteria produce करता है,
कुछ पैरासाइट्स, virus infected cells, and even snake venom. It also act as the initiator. First step is the binding of C3b to an activator. तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि C3b जो होता है that is the central path. ठीक है. So here is the alternative pathway. So to start the alternative pathway, first of all C3 जो है, you know all these proteins, they are serum protein. They are present in the normal human serum which is unheated. ठीक है, बिकॉज दीज प्रोटीन्स दे आर वेरी थर्मोलिवाइड. तो C3 कॉम्पोनेंट जो C3 प्रोटीन जो होता है इट हाइड्रोलाइजेस स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, ये ब्लड में हाइड्रोलाइज करता रहता है टू फॉर्म C3A एंड C3B. तो C3B जो है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉर्म. बट वट हैपन्स, जैसे ही C3B जो है ये बनता है, ठीक है, C3B it is inactivated by serum protein factor and H and B. H and I inactivates the newly formed C3B. ठीक है, तो C3B एक नेचुरल प्रोसेस है. सीरम में, ब्लड में C3 जो है वो ब्रेक करके C3B जो बना देगा. C3B जो है, तो जैसे ही C3B बनेगा नेचुरल सीरम में, इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय H and I विच आर सीरम प्रोटीन फैक्टर्स. दीज आर सीरम प्रोटीन फैक्टर्स एंड दे इनएक्टिवेट द C3B सो दैट C3B जो है वो कैस्केड नहीं बना पाता. ठीक है, अब कुछ इनिशिएटर्स होते हैं. ठीक है, इनिशिएटर्स फॉर एग्जांपल एंडोटॉक्सिन है या स्नेक वेनम है. ये क्या करते हैं, C3B को बाउंड कर लेते हैं और इनिशिएट करते हैं. अब ये जो बाउंड C3B होता है, नाउ इट इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड बाय H and I. ठीक है, तो C3B को बाउंड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है सो दैट इट मे नॉट बी इनएक्टिवेटेड बाय H and I. ठीक है, वंस C3B इज बाउंड ड्यू टू इनिशिएटर्स, ठीक है, जस्ट लाइक टॉक्सिन्स एंड स्नेक वेनम, द C3B in bound form, now factor B. ठीक है, now comes the factor B, and in the presence of C3B, the factor B it also split into BA and BB. ठीक है, so as a rule A is a smaller factor, it is released, and B it form the part of the cascade. ठीक है, it is also helped by the factor D. ठीक है, so serum protein factor B. ठीक है, this complex it also help in the formation of this complex. Now this is formed C3BBB. Now this is known as C3 convertase. ठीक है, C3 convertase जो होगा वो कन्वर्ट कर देगा C3 को. अब ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया. ठीक है, मोर एंड मोर C3 दे विल बी स्प्लिट. ठीक है, तो अब ये जो C3BBB कॉम्प्लेक्स होता है इट इज़ एक्सट्रीमली लेबाइल. ठीक है, तो इसको स्टेबलाइज करता है प्रोपेरडिन. ठीक है, तो प्रोपेरडिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टेबलाइजेज द C3BBB कॉम्प्लेक्स विच एक्ट एज C3 कन्वर्टेज. ठीक है, क्लासिकल पाथवे में आपको याद होगा, तो यहाँ पे भी हमने बनाया था फाइनली C3B कन्वर्टेज बाय अनदर सेट स्टेप्स. ठीक है, विच वर इन्वॉल्विंग C1, C4 एंड C2. ठीक है, जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं C1, C4 एंड C2, यही मेन डिफरेंस है. अब यहाँ आके दोनों पाथवेज जो है कॉमन हो गए. अब यहाँ पे C3 जो है नाउ इट इज़ in the presence of C3 convertase. ठीक है, either from the C3 convertase either from the alternate pathway or the classical pathway. C3 convertase जो है वो C3 को स्प्लिट कर देगा C3A में, जो निकल जाएगा एज एनाफाइलोटॉक्सिन. एनाफाइलोटॉक्सिन मैंने बताया था ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में हेल्प करता है. ठीक है, और C3B जो है नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैस्केड. नेक्स्ट वही स्टेप है जो आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में किए थे. ठीक है, C5 स्प्लिट हो जाएगा B और A में. ठीक है, इट विल ज्वाइन विद C6 C7, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल ज्वाइन विद 8 एंड 9, और फाइनली जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज MAC. ठीक है, मेम्ब्रेन अटैक कंपाउंड और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो क्या करेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैक, पॉलीमराइजेशन ऑफ द C9. ये C9 क्या करते हैं, ये इम्बेंड हो जाते हैं, दे इम्बेडेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक चैनल या होल क्रिएट कर देते हैं जहाँ से कि
बाहर से इलेक्ट्रोलाइट और कैल्शियम आयन द इनफ्लक्स इनटू द बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल जो है फाइनली इट गेट रप्चर्स, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिकल एंड द ऑल्टरनेट पाथवे, ठीक है। चाहे क्लासिकल पाथवे हो चाहे ऑल्टरनेट पाथवे हो, उनका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है दैट इज मैक, ठीक है। तो मैक क्या करता है कि सेल को ब्रेकअप कर देता है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, यहाँ पे आइदर तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, या फिर अगर ऑल्टरनेट पाथवे हो तो यहाँ पे C3b जो हैं मोर एंड मोर C3b, एक बार इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है C3b की, मोर एंड मोर C3b जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये C3b जो होते हैं ये कवर कर लेते हैं पूरी की पूरी सेल को, ठीक है। दिस इज नोन एज द ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ये हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट इसमें। सो दीज आर द क्लासिकल एंड ऑल्टरनेट पाथवे जो फाइनली which help in the lysis of the bacterial cell. Bacterial cell it die due to the lysis. इसमें पोर्स और चैनल बन जाते हैं और बैक्टीरियल सेल जो है वो बस्ट कर जाती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो सेल की किलिंग में, बैक्टीरियल सेल की किलिंग में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस और द बेनिफिट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट इज सेल लाइसिस, ठीक है। सेल लाइसिस मैंने बताया इट इज ड्यू टू द MAC, membrane attack complex, which is formed as a result of complement activation either due to the alternate pathway or the classical pathway, ठीक है। whatever the pathway is, the final product is MAC जो सेल को लाइज करता है। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, बॉर्न आउट आर्थ्रोसाइट्स होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, दे आर किल्ड ड्यू टू द MAC, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। Inflammatory response, it is due to the various side products of the alternate pathway or the classical pathway which are also known as split product, ठीक है। स्प्लिट प्रोडक्ट याद है हम लोग दो फैक्टर बना रहे थे A एंड B, तो उनमें से A फैक्टर जो है दे आर रिलीज्ड लाइक C3A, C4A, C5A, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द स्प्लिट प्रोडक्ट्स और दीज आर आल्सो नोन एज द एनाफाइलोटॉक्सिन्स, ठीक है। एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो होते हैं दे बाउंड टू द रिसेप्टर्स ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, ठीक है। यू नो बेसोफिल सेल्स, तो मास्ट सेल्स या जो बेसोफिल सेल्स होती हैं ये ग्रैनुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, एंड दे कंटेन द हिस्टामिन। तो ये क्या करते हैं स्प्लिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एनाफाइलोटॉक्सिन्स, ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स की डीग्रेनुलेशन करते हैं, ठीक है, और वहाँ से रिलीज़ कराते हैं हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन का फंक्शन आप लोगों को पता होगा। हिस्टामिन जो होता है इट कॉजेज द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मीन्स डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल की डायलेशन हो जाती है, मीन्स वो ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, उनका डायमीटर बढ़ जाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल ज़्यादा आती हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा आती हैं, वो एरिया ड्यू टू large supply of blood becomes red and warm, ठीक है। these are known as the inflammatory reaction. तो inflammatory reactions are due to the split product and degranulation of the mast cells and the basophil cells. These products are C3A, C4A, C5A. Next is opsonization. Opsonization is due to the C3b, ठीक है। C3b जो होता है it is the most important opsonin of the complement system, और ये C3b क्या करता है ये पूरी तरह से कवर कर लेता है बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल व्हेन इट इज कवर्ड बाय द C3b इट बिकम्स मोर प्रोन टू द मैक्रोफेजेस एंड द फेगोसाइट्स, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, जस्ट लाइक एक बहुत ही बिटर जो मेडिसिन होती हैं जो आप एनगल्फ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स उनके ऊपर कैप्सूल लगा देते हैं एंड यू ईजली एनगल्फ देम, ठीक है, ईजिली आप उनको खा सकते हो, वही ऑप्सोनाइजेशन होता है। जो बहुत ही खतरनाक सी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनको ऑप्सोनिन कवर कर लेते हैं, एक कैप्सूल बना लेते हैं एंड इट बिकम्स मोर प्रोन टू द मैक्रोफेजेस और फेगोसाइटिक एक्शन। तो ऑप्सोनाइजेशन मीन्स कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू द C3b प्रोटीन, ठीक है। वायरल न्यूट्रलाइजेशन, neutralization of virus is also due to the complement system. Lot of viruses like retroviruses, rubella viruses,
ठीक है। ये सारे वायरसेस जो होते हैं दे एक्ट एज एक्टिवेटेड, दे एक्टिवेट द ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड फाइनली ड्यू टू द सेल लाइसिस द वायरल न्यूट्रलाइजेशन इज देयर। लास्ट स्टेप इज क्लियरेंस ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, समटाइम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है और दे रिजल्ट इन द ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो इन एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं इनका डिस्पोजल भी कैसे होता है, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उनको कवर कर लेता है, ऑप्शनाइज कर देता है, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ईटन बाय द मैक्रोफेजेस और द macrophages or any phagocytic cells. So this is all about the complement system, ठीक है। जो भी कोई complement system का pathway हो, the final product is the MAC which break up the bacterial cell and also they invoke the inflammatory responses. Thank you.